Hello dear student, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome all for the video series of linear integrated circuits having a subject code 22423. In this lecture, we are going to study about chapter 3, that is linear applications of operational amplifier, and today's topic of discussion is analog divider and multiplier using log and anti-log amplifier. The course outcome for this course as troubleshoot various applications of op-amp for the given specification. Till date, we have studied lot many applications of operational amplifier with their specification and understand how to troubleshoot that various applications using op-amp. This chart shows the CO and PO mapping. Here, the CO3, that is the course outcome of Unit 3, getting mapped with PO1, PO2, 3, 4, 6 and 7. How this CO3 getting mapped with all these PO we have studied in the last lecture. As you know about all the POs, whatever the POs you have used here, how it is getting mapped with this particular PO we have studied. I hope everyone understands the CO and PO mapping chart very well. The learning outcomes for this course. After the completion of this course, students will be able to क्या कर सकते हैं? Student will be able to draw and describe op-amp based operation using log and anti-log amplifier for the application VO is equals to V1 into V2. मतलब अगर आप लोग मल्टीप्लायर यूज करोगे तो यू कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई VO is equals to V1 into V2, और अगर आप लोग डिवाइडर यूज कर रहे हो तो यू कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई और कैलकुलेट VO is equals to V1 by V2. This is all about the learning outcomes of this topic. Then in the last lecture we have studied, क्या पढ़ा था आपने? हमने देखा था कि सर्किट डायग्राम एंड डेरिवेशंस ऑफ लॉग एम्पलीफायर. लॉग एम्पलीफायर क्या होता है, उसके बाद में एंटी लॉग एम्पलीफायर क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. उसका सर्किट डायग्राम भी देखा था और उसके साथ साथ उसका एक आप लोगों ने डेरिवेशन भी फाइंड आउट किया था जो कि आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज के लिए था. अलॉन्ग विद द डायग्राम आप लोगों ने उसका डेरिवेशन, सर्किट डायग्राम सब कुछ आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में लॉग और एंटी लॉग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा है. Now let's start with the analog divider. Now what is analog divider? First of all, an analog divider performs division of two analog signal. Analog signal are nothing but your sinusoidal signal. उन दोनों का डिवीजन करने का काम कौन करेगा? Analog divider. To get the division, we have to perform following operation on the analog input. अभी इसको आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. What are the different operations on the analog input? First of all, we have to take log of signal, log x and log y. For that, we have to create the block diagram which is like this. Here, there are two log amplifier. Two log amplifier लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले कि फर्स्ट लॉग एम्पलीफायर का वोल्टेज है V1 और इसका आप लोगों का वोल्टेज है दैट इज V2, राइट. हियर द वोल्टेज इट इज नथिंग बट V1 एंड V2. उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का लॉग एम्पलीफायर का, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे बोला है लॉग एक्स, तो मैं यहाँ पे लूंगी लॉग V1 और यहाँ पे मेरा रहेगा क्या log, here it is the log V2, log V2, राइट. उसके बाद में सेकेंड स्टेप आपका है
perform subtraction to get the division log x minus log y is equals to log x by log y. आप लोगों को log का पता है कि अगर दो टर्म्स का आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन किया बाय टेकिंग log, तो आप लोग उसको फॉर्मूला में लिख सकते हो log x by y. तो यहाँ पे आप लोगों को यू हैव टू यूज सम सब्सट्रैक्टर, तो मैं यहाँ पे एक सब्ट्रैक्टर यूज करूंगी. सब्ट्रैक्टर को यूज करने के बाद आप लोगों का ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म हो जाएगा. log v1 माइनस log v2 log v2, राइट. तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, log v1 अपॉन v1 अपॉन v2. So by using these two log amplifier we can perform the operation for the analog divider. उसके बाद में आप लोगों को दिस log को एंटी लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए take antilog to cancel the log, so we will get the antilog of log x of y is equals to x upon y, that is v1 by v2. we will get the v1 by v2 और v2 by v1. तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर v1 माइनस v2 किया होगा तो यहाँ पे भी v1 माइनस v2 करेंगे, और अगर आप लोगों ने यहाँ पे v2 माइनस v1 किया होगा तो यू कैन गेट द इक्वेशन हियर v2 माइनस v1. तो अपन यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, एंटीलॉग एम्पलीफायर को एंटीलॉग लगाने के बाद वी विल गेट हियर द v1 बाय v2. तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द एनालॉग डिविडर. समझ में आया सभी को. सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल एन एनालॉग डिविडर परफॉर्म्स द डिवीजन ऑफ टू एनालॉग सिग्नल. उसके बाद में हाउ टू परफॉर्म द डिवीजन, उसके लिए आप लोगों को एनालॉग इनपुट पे लॉग लेना पड़ेगा. उसके लिए अपन ने लॉग एम्पलीफायर यहाँ पे कनेक्ट किए, उसको वोल्टेज v1 एंड वोल्टेज v2. जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉग एम्पलीफायर करेंगे तो इस v1 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लॉग v1 and this v2 getting converted into log v2. then we will use here subtractor. subtractor का फॉर्मूला है, whenever we log को अगर subtraction करते हैं तो we'll get here the formula log v1 by v2. उसके बाद में इसको एंटी लॉग करते हैं अपन, एंटी लॉग लगाते हैं तो we'll get the value v1 by v2. तो this is all about the एनालॉग डिविडर. सेम परफॉर्मेंस आप लोगों को एनालॉग मल्टीप्लायर के लिए करना है. तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है दैट इज द एनालॉग मल्टीप्लायर. एनालॉग मल्टीप्लायर में कैसे सेम स्टेप्स पे जाना है. एंड एनालॉग मल्टीप्लायर परफॉर्म्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एनालॉग सिग्नल. वहां पे आप लोग क्या करते थे, डिवीजन. यहाँ पे अपन करेंगे मल्टीप्लिकेशन. टू गेट द मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द एनालॉग इनपुट. आप लोगों को अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो यू हैव टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक दैट. तो कि यहाँ पे एनालॉग इनपुट्स पे अपन ले रहे हैं. उसके बाद में टेक लॉग ऑफ सिग्नल्स. हियर वी हैव टू यूज टू लॉग एम्पलीफायर. फर्स्ट 1, उसके बाद में v1 एंड v2. तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, हियर वी विल गेट द v1 और हियर वी विल गेट द v2, राइट. उसके बाद में हियर आप लोगों ने यहाँ पे लॉग एम्पलीफायर यूज किया है तो हियर इट इज अ लॉग v1 log v1 और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा क्या, log v2 log v2, राइट. उसके बाद में यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लायर के लिए लॉग लगाने के बाद एक फॉर्मूला है log v1 प्लस v2 इज इक्वल टू log v1 इंटू v2. तो यहाँ पे आप लोगों को परफॉर्म सब्ट्रैक्शन टू गेट द डिवीजन. सॉरी यहाँ पे एडिशन चाहिए था. हियर वी हैव टू पुट द एडिशन.
यहाँ पे परफॉर्म एडिशन टू गेट द डिवीजन, सो log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू वाई। यहाँ पे ऐड करोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, एडर। यहाँ पे अपना रहेगा क्या, एडर। एडर लगाने के बाद आप लोग उसको सेम प्रोसीजर जैसे वहां पे फॉलो किया था, तो ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, log v1 इंटू v1 इंटू v2, ठीक है, v1 इंटू v2। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे क्या करेंगे, टेक एंटी लॉग टू कैंसल द, सो वी विल गेट हियर बाय यूजिंग द एंटी लॉग एम्पलीफायर। आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा क्या, v1 इंटू v2। तो दिस इज ऑल अबाउट द analog multiplier. I hope everyone understand about the analog divider and the analog multiplier. आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट समझ के लेना है कि आप लोग यहाँ पे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर लगाते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉग कनेक्ट होगा। जैसे एडिशन करते हो दोनों की, तो आप लोगों का फॉर्मूला है लॉग के लिए, लॉग a प्लस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a इंटू b। तो यहाँ पे आप लोगों को a को कंसिडर करना है v1 एंड b2 कंसिडर करना है v2, और उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे v1 इंटू v2 मिलेगा। और जैसे अपन एंटीलॉग एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं, वी विल गेट हियर v1 इंटू v2। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि एनालॉग मल्टीप्लायर कैन बी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे होता है। तो सिंबॉलिकली आप लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का सपोज यहाँ पे है x, यहाँ पे है आपका y, एक्स वाई, तो आप लोगों को यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा v इज इक्वल्स टू k इंटू x इंटू y, k इंटू x इंटू y, where k is a constant of scaling factor or x and y are the variables of the constant. So you can symbolically represent that analog multiplier like this. This lecture summarizes here क्या क्या पढ़ा अपन ने, कंसेप्ट ऑफ डिविडर एंड मल्टीप्लायर को देखा है। उसके बाद में हाउ टू डू द ऑपरेशन ऑफ डिवाइडर एंड द मल्टीप्लायर यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर, ये भी आपने यहाँ पे पढ़ा है। I hope everyone understand about this lecture. Thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture, we will study about comparators and their types. Thank you.